بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دوسرا دورہ چل رہا ہے اور اس میں ہم مصائب پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہادت حضرت مسلم علیہ السلام۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی شخصیت مختلف پہلوؤں سے بالکل واضح اور روشن ہے کہ آپ حضرت جناب عقیل کے فرزند ارجمند ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے داماد ہیں، اور اسی طرح سے ان کی شجاعت کا یہ مقام ہے کہ زمانہ امام حسین علیہ السلام میں 3 شجاع ترین اشخاص عرب میں مشہور تھے۔ ایک حضرت ابوالفضل العباس اور ایک حضرت مسلم ابن عقیل اور تیسرے محمد ابن حنفیہ۔ یہ 3 اہم ترین شخصیات تھیں اور اس دور کی پاور رکھنے والی شخصیات، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، کیونکہ اصل مقصد مولا حسین علیہ السلام کا جنگ نہیں تھا۔ اگر جنگ ہوتا تو میرے مولا کبھی بھی ان کو جدا نہ کرتے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے چاہتے ہیں شخصیت جناب عقیل علیہ السلام، تو یوں ہے کہ یہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جیسا کہ آگے چل کر آپ سماعت کریں گے کہ اتنے شجاع انسان تھے کہ جب کسی شخص کو یوں پکڑ کر پٹکتے تھے تو چھت پر پھینک دیتے تھے، اور لشکروں پر لشکر منگوانا پڑے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا ہے تو ان کے 3 اہداف اور مقصد ہیں، یا یوں کہیے کہ فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام 3 ہیں۔ ویسے تو مختلف بیان کیے گئے ہیں، زیادہ اس سے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اہم ترین 3 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی ہے۔ جب امام سے بیعت طلب کی گئی تو امام پر قیام واجب تھا اور بیعت نہ کرنا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہے کیونکہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو 18,000 یا اس سے زیادہ، بعض میں لکھا ہے کہ 25,000 تو خط لکھے تھے، لہٰذا جب کسی کی طرف سے حجت تمام ہو جائے تو امام پر قیام واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لہٰذا یہ 3 اسباب فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان میں سے دوسرے سبب کے تحت کیونکہ کوفے والوں نے خط لکھا تھا، لہٰذا مولا حسین علیہ السلام نے ان کے خط کے جواب کے طور پر حضرت مسلم علیہ السلام کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ 15 ماہ رمضان 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جب روانہ کیا تو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ یہ مسلم ابن عقیل یہ میرا بھائی ہے، میرا معتمد ہے اور میرے لیے ثقہ ہے، یعنی انی باعث تو رجلاً اخی و ثقتی و معتمدی، یہ الفاظ تقریباً مقتل میں ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر روانہ کیا، اور اس کے بعد حضرت مسلم بہرحال مختلف مراحل ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے دوبارہ مدینے آئے ہیں، مدینے سے پھر کوفہ کی طرف گئے ہیں۔ تو خیر، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو مفصل گفتگو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اہم نکات کی طرف متوجہ کرنا ہے، باقی آپ تفصیل سے خود مطالعہ کر کے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب حضرت مسلم کوفہ تشریف لاتے ہیں تو کوفہ میں الحمدللہ بہترین طریقے سے استقبال ہوتا ہے، اور روایات کے مطابق وہی کہ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے
मौला की तरफ ख़त लिखा, हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, और ये ख़त में लिखा कि इस वक्त हालात साजगार हैं, आप यहाँ कूफा में तशरीफ़ ले आइए। बहरहाल ये ख़त भेजा गया और उसके बाद क्या हुआ, मुख्तसर तौर पर यह है कि हालात कूफा के तब्दील हो गए, क्योंकि इब्न ज़ियाद एक धोखा देकर और एक अपने आप को जालसाजी करके कूफा में आया, और आने के बाद उसने तहदीद की और डराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को एक एक करके छोड़ने लगे। और इसी तरह से जब हज़रत मुस्लिम ने कूफा में नमाज अदा की है, नमाज मगरिबैन, तो नतीजा ये था कि पीछे सिर्फ 30 लोग थे। और जब नमाज मुकम्मल हुई तो जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे थे, मजमा छटता चला गया, और जब मस्जिद से बाहर अपने आप को पाया तो तन्हा पाया, कोई भी साथ नहीं था। अब आप जानते हैं कि कोई मेहमान अगर खुलूस के साथ और बड़े इस्तकबाल के साथ किसी को लाया जाए तो उनको रास्तों का पता नहीं होता, लेकिन अब हाँ अकेले मुस्लिम हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, रास्तों से आशना नहीं है, कोई अब अपने लिए इनके लिए दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है, सब ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए। बस इख्तिसार के साथ ये हुआ कि चलते चलते एक दरवाज़े को खुला पाया गैर मुतवक्के तौर पर, तो वहाँ पर एक खातून खड़ी थी और उनसे ये कहा कि ए बीबी, मुझे पानी मिल जाएगा। वो खातून गई और जाकर पानी ले आई, जिसको तारीख़ ने तौआ लिखा है। ये पानी देने के बाद दोबारा वापस पलट जाती हैं, और फिर वापस जब पलट कर आती हैं तो वहाँ पर ही हज़रत मुस्लिम खड़े हुए हैं। कहा कि ए मुस्लिम, ऐ शख्स, तू अजनबी है, लेकिन तू अपने घर जाता क्यों नहीं है? हालात कूफे के अच्छे नहीं हैं, जा अपने घर में जा। यहाँ पर मुख्तलिफ दर्द भरे जुमले हैं। वहाँ पर हज़रत मुस्लिम ये कहते हैं कि तू भी सही कहती है, लेकिन वो मुसाफिर जाए तो कहाँ जाए जिसका ना कोई घर हो, ना जिसके यहाँ बच्चे हों, ना कोई पहचान। कहा आप कौन हैं? कहा कि मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ, हुसैन का सफ़ीर हूँ। ये सुनना था। ये मोमिना खातून थी, एक मर्तबा जगह देती है अपने घर में, और घर में उनकी ग़ज़ा का एहतमाम करते हैं। और फिर उसके बाद तारीख़ ने यह लिखा है कि इसी का बेटा मलऊन था और उसका नाम बिलाल। वो सारे दिन तलाश करते करते जब ना पाया तो अपने घर में वापस आया, और माँ ने भी नहीं बताया, लेकिन वहाँ पर घर का थोड़ा सा माहौल इसे एहसास हुआ, क्योंकि बार बार हज़रत मुस्लिम की ख़बर लेने के लिए जाना पड़ रहा था, और वहाँ पानी दे रही थी या ग़िज़ा का इंतज़ाम कर रही थी। इसी हवाले से इसने महसूस किया कि हमारे घर के हालात कुछ अलग से हैं। तो बिल आखिर यह है कि बार बार जब इसने इसरार करके पूछा तो बीबी ने वास्ता देकर कहा कि तुम्हें कसम है कि किसी को बताना नहीं, हमारे घर में मुस्लिम इब्न अकील हैं, ये हमारे लिए मेहमान हैं। लेकिन इस मलऊन ने सुबह जाकर इब्न ज़ियाद को बता दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अज़ादारान मज़लूम करबला, यह है कि एक मर्तबा लश्कर पर लश्कर आने लगे और आकर तौआ का घर घेर लिया। अभी इधर से मुस्लिम की अभी नमाज की ताक़ीबात भी मुकम्मल ना हुई थी कि घोड़ों की झनकार को महसूस किया। हज़रत मुस्लिम ने अपनी तलवार को संभाला और यहाँ से बाहर निकलने लगे, लेकिन तौआ ने एक मर्तबा रास्ता रोका और कहा कि आका आप बाहर न जाइए। लेकिन हज़रत मुस्लिम हाशमी खून था, जोश में आ गया। कहा कि ए तौआ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि तेरे दुश्मन तेरे घर में वारिद हो जाएं। मैं कहूँगा ए मुस्लिम, आप शाम गरीबा में न थे। आप अगर शाम गरीबा में होते तो आपकी क्या हालत होती जब ये कहा जा रहा था लूटो तबर्रुकात, अलियो बतूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। और हज़ादारों उसके बाद लश्करों पर लश्कर आने लगे, और हज़रत मुस्लिम आपको अर्ज़ किया था कि इतने शुजा थे कि जिसको पटकते थे और उठाकर छत पर फेंक देते थे, और इधर से उधर बस इस तरह से हमले करते जा रहे हैं। और वापस ये कहा जाता है इब्न ज़ियाद और लश्कर को भेज, लश्कर को भेज। जब ये बार बार कहा गया तो एक मर्तबा इब्न ज़ियाद ये कहता है कि एक शख्स को गिरफ़्तार करना है और इतनी फ़ौजें भेज रहे हैं, और उधर से
जो सिपा सालार होता है वो कहता है, ओ मलोन, तुझे नहीं मालूम तूने कोफा के किसी बक्काल और सब्जी फरोश के मुकाबले में मुझे नहीं भेजा है। ये बनु हाशिम का जवान है, इसको कैद करना कोई आसान नहीं है। बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुजा दिखाई है। आखिर में अमान नामा कहकर और वादा करके कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, गिरफ्तार किया गया। बस उसके बाद मेरे मौला आका हज़रत मुस्लिम को कैद करके लेकर आए हैं इब्न ज़ियाद के दरबार में। जब दरबार में लेकर आए तो उस वक्त किसी ने कहा कि आमीर को सलाम नहीं करोगे? तो हज़रत मुस्लिम ने कहा, लैसा ली अमीर सिवाल हुसैन, मेरा तो हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। अमीरी हुसैन व नेमल अमीर, मेरा तो अमीर फ़कत हुसैन है और इसके अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है, और वही हुसैन ही मेरा बेहतरीन अमीर है। लेकिन किसी ने कहा कि ऐ मुस्लिम, सलाम करो या ना करो, कत्ल कर दिए जाओगे। जब हुक्मनामा ये जारी हुआ है कि कत्ल कर दिए जाओगे, उसके बाद हज़रत मुस्लिम ने सामने खड़े हुए उमर इब्न साद से ये कहा कि ऐ उमर इब्न साद, मेरी चंद वसीयतें हैं, अगर तुम सुन लो तो। उसने थोड़ा सा गुरेज किया कि ना सुनो, लेकिन कहा कि कोई हरज नहीं है। इब्न ज़ियाद ने कहा कि सुनने में तो कोई हरज नहीं है, सुन लो। वो गया और उसके बाद हज़रत मुस्लिम ने चंद वसीयतें की। उनमें से एक वसीयत ये थी कि मैं यहाँ कूफे में आया हूँ और यहाँ पर मकरूज़ हो गया हूँ, और जब मेरी शहादत हो जाए मेरी ज़रा बेच कर वो कर्ज़ा उतार देना। अल्लाह रे कोई दीन सीखे तो आले मोहम्मद से सीखे कि मौत सामने है, लेकिन अल्लाह के दीन का ख्याल इतना है कि मकरूज़ हैं तो उसका कर्ज़ा अदा कर दिया जाए। और उसके बाद फरमाया कि जब मैं शहीद कर दिया जाऊँ तो मेरे लाशे को दफना दिया जाए। और तीसरी वसीयत ये है कि मैंने ख़त लिखा है हुसैन को कि कूफे आ जाइए, लेकिन अब उनको ख़त ये लिख दिया जाए कि कूफे ना आना, कूफा हमारे काबिल अब नहीं रहा। लेकिन उसके बाद उमर इब्न साद ने जाकर सारी की सारी वसीयतें इब्न ज़ियाद को बता दी। बहरहाल उसके बाद हुक्म ये होता है कि हज़रत मुस्लिम का सर कलम कर दिया जाए। दारुल अमारा की छत पर ले गए और उस जगह पर जाकर हज़रत मुस्लिम ने पहले नमाज अदा की। अब यहाँ पर दो तरह की रिवायतें हैं मक्तल के अंदर जो मिलती हैं। एक रिवायत यह है कि वहाँ पर हज़रत मुस्लिम ने एक मरतबा सलाम ये किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, और उधर से मौला हुसैन मक्का से रवाना हो चुके थे और मंजिल ज़ुबाला पर जब पहुँचे तो आवाज़ यही आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, व अलैकुस्सलाम या सफ़ीर अल हुसैन, ए हुसैन के सफ़ीर, आप पर भी मेरा सलाम हो। इतने में किसी ने पास से पूछा, क्या मुस्लिम आ गए? कहा नहीं, मुस्लिम ने मुझे कूफा से सलाम किया है, और उसका जवाब दिया गया। एक रिवायत यह है कि जब उधर दारुल अमारा पर ले जाया गया, बहरहाल इधर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मंजिल ज़ुबाला पर पहुँचे तो कूफा की तरफ से कुछ लोगों को आते हुए देखा। कहा कि इनको बुलाया जाए, और जब बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि बताओ मेरे मुस्लिम का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा अलग आ जाइए ताकि आपको सही तरीके से बता सकें। मौला ने कहा नहीं, ये सब हमारे अपने हैं, लिहाजा यहाँ ही बता दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब हम कूफा से निकल रहे थे तो उस वक्त हज़रत मुस्लिम के पाँव में और हानी इब्न उर्वा के पाँव में रस्सियाँ डाल के कूफे के बाज़ारों में खींचा जा रहा था। ये सुना और मेरे मौला ने एक मरतबा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आज़ादारो इसके बाद जो मसाइब का पहाड़ है वो ये है कि हज़रत मुस्लिम की बेटी अतीका नाम भी लिखा है और हमीदा भी, कहा ज़रा उसको बुलाया जाए। अब जब उसको बुलाया गया, एक मरतबा मौला हुसैन ने अपने जानों पे बिठाया, सर पर शफ़क़त का हाथ रखा और प्यार करने लगे। और बच्ची ने तड़प कर पूछा, क्या बाबा, क्या मामू जान, मेरे बाबा शहीद हो गए? क्या मेरे बाबा मारे गए? कहा हाँ मेरी बच्ची, आज से मैं ही तेरा बाप हूँ। लेकिन हाँ आज़ादारो, हम मिलकर मौला हुसैन से यही अर्ज़ करेंगे कि मौला, जब आप हमीदा के सर पर हाथ रख रहे थे, काश सकीना को हटा दिया होता,
کیونکہ سکینہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ جب کسی کا بابا مارا جائے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن ہائے بی بی سکینہ کو اس کی یتیمی کی خبر اس کو تماچا مار کے دی گئی۔ یہی سکینہ کا مصائب ہے۔ ہاں زدارو، بس اس کے بعد مختصر میں نے عرض کیا ہے چل رہی ہے گفتگو، وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا اور سر کو بھی میدان میں پھینکا گیا اور دھڑ کو بھی زمین پر پھینکا گیا، اور اس کے بعد حضرت مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کوفہ کے بازار میں گھمایا گیا۔ بس میں نے انتہائی مختصر کر دیا عزادارو۔ ایک بات جو تڑپانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہی کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کے سامنے باب پر پہنچا ہے، دروازے پر، تو وہاں دیکھ کر ایک مرتبہ بی بی زینب نے یہ جملہ کہا، مسلم کی لاش دیکھ کر زینب نے یہ کہا، کیا اس شہر میں قبر بنائی نہیں جاتی؟ یعنی آپ دیکھیے کتنا فاصلہ وقت گزر چکا تھا کہ ابھی تک حضرت مسلم کی لاش کو لٹکائے رکھا تھا، اور اس طرف آپ دیکھیے گا کہ جب شہزادہ مسلم کو شہید کر دیا گیا اور پاؤں میں رسی ڈال کر گھمایا جا رہا تھا، تضحیک کی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو ساتھ ہانی ابن عروہ کا لاشا تھا۔ لیکن یہاں اور ادھر مولا حسین کی لاش کی بے حرمتی میں بہت فرق ہے۔ یہاں ہانی ابن عروہ ساتھ ہیں اور ادھر سیدانیہ ساتھ ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ ماں جائے کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان، ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ اور بالکل سادہ انداز میں چند جملات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ بھرپور طریقے سے آپ خود بھی تاریخ سے استفادہ کریں، مقتل سے استفادہ کریں اور مولا کے مصائب کو بیان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔